मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम to Mathological. This is the 39th session of our CAT DLR 100 series. In this series, we are doing total 100 DRR sets for CAT examination. Start करते हैं एक और beautiful session. And if you have not already subscribed, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में सेशन को भी लाइक कर देना. You can also join Telegram and WhatsApp channel as well. Link you can check out from the description. So this is the set for today, followed by some more description and 6 questions. So pause the video, try to attend the set yourself first, then only watch the solution. So let us read the caselet first. India played a 5-match bilateral ODI series against Australia. The table below shows the cumulative average runs scored by each of the 7 Indian batsmen up to and including the respective match during the series. The 7 batsmen are Rohit, Shubman, Virat, Shreyas, Rahul, Hardik and Ravindra, all of whom batted in each of the 5 matches. No batsman remained not out in any innings. The names in the table have been masked and are represented in no particular order. It is known that the cumulative average value for each batsman after every match was an integer. Runs scored by these 7 batsmen accounted for at least 90% of India's total score in each of the 5 matches. That is the description, followed by some values of cumulative average given for these 7 players. अब हमें नाम भी नहीं पता है अभी तो पहले तो हमें जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट वैल्यूज आर देयर एंड देन व्हाट वैल्यूज आर देयर फॉर रन स्कोर्ड इन एवरी मैच फॉर दीज प्लेयर्स एंड फिर बाद में आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्लेयर हमारा एक्चुअल में नाम कौन सा है फॉर P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन टिल P7, फॉलोड बाई फिर बाद में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, सो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या था हमारा जो हमने अभी डिस्क्रिप्शन पढ़ा उसमें कि 5 मैचेस वर देयर and these values are basically cumulative average values for the player, for the respective player up to that match. So for example, match 1 में value given है 56 of average. So match 1 में डेटा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ score in that particular match. और match 2 में डेटा क्या होगा, match 1 plus match 2 का score and divide by 2, that will be the average value. So for example, for P1, match 1 का average is 56, यानी कि runs scored in match 1 will be 56 only. ब्रैकेट में लिख देते हैं रन्स स्कोर्ड इन दैट पर्टिकुलर मैच. सिमिलरली मैच 2 का एवरेज इज 48, तो क्यूमुलेटिव एवरेज आ रहा है 48. ये हमारा मैच 2 का स्कोर नहीं है, दिस इज क्यूमुलेटिव एवरेज. तो अगर क्यूमुलेटिव एवरेज हमारा 48 आ रहा है तो रन्स स्कोर्ड बाय P1 इन मैच 1 प्लस मैच 2 दैट विल बी 48 into 2 व्हिच इज 96. और मैच 1 का स्कोर हमारा 56 है, सब्ट्रैक्ट कर दो 56, रिजल्ट आ जाएगा हमारा 40. तो 40 विल बी रन स्कोर्ड बाय P1 इन मैच 2. ओके, दिस इज वन वे टू लुक एट इट. दूसरी बात क्या है कि जब भी हम ऐसे केसेस में मल्टीपल टाइम से करना पड़ेगा, एक दो बार करना होगा तो ये मेथड काम कर जाएगा, सिंपली ऐसे कर सकते हो. बट क्योंकि हमें ये बार बार करना है या इस टेबल में लगातार करना पड़ेगा, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा. तो ये समझो कि एवरेज का जो बेसिक फंडा है हमारा, जो तुमने अगर बेसिक्स अच्छे से किए होंगे तो जरूर से किया होगा कि हमारा मैच 1 का एवरेज है 56, ठीक है, मैच 2 का एवरेज है 48. अब ऐसे सोचो मैच 2 में अगर रन स्कोर सेम एज मैच 1 होते, यानी कि एवरेज के बराबर होते, कि एवरेज की बात करो, मैच 1 में जो है हमारा एवरेज वैल्यू है एंड दैट इज फॉर ओनली वन वैल्यू. सो एवरेज के बराबर ही रन होंगे मैच 2 में भी. सो इन दैट केस इफ नंबर ऑफ रन स्कोर्ड आर सेम एज द एवरेज, इन दैट केस एवरेज विल नॉट चेंज, बट एवरेज हैज एक्चुअली चेंज्ड. एवरेज हैज डिक्रीज्ड बाय 8. सो देयर इज अ चेंज ऑफ एवरेज, चेंज इन एवरेज, दैट इज डेल्टा ए व्हिच इज इक्वल टू -8. और टोटल वैल्यूज कितनी है, 2 है. सो इफेक्टिवली इफ the number of runs scored in the upcoming match is same as the initial average, in that case the average will not change. But if there is a change in average, then in that case delta A will be equal to change in the sum, effective sum, ठीक है, change in the sum divided by number of values. So that is the case. So since up to match 2 we have 2 matches there, ठीक है, so हमारा डेल्टा ए आया है -8, एवरेज में चेंज आया -8 और मैचेस 2 हैं, सो डेल्टा ए इंटू एन, डेल्टा एस और द, ठीक है, डेल्टा एस विल बी एन इंटू डेल्टा ए. एन इज इक्वल टू, बिकॉज देयर आर 2 मैचेस, जब हम क्यूमुलेटिव एवरेज की बात करें मैच 2 के लिए, तो 2 इंटू -8. सो बेसिकली एवरेज -16 विल बी द स्कोर इन सेकंड मैच. अब ये एवरेज कौन सा है, एवरेज हमारा फर्स्ट मैच वाला, ठीक है. और यहाँ पे हम जब भी डेल्टा ए की वैल्यू लेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी विद साइन. सो इन दिस केस वी कैन से दैट मैच 2 का जो वैल्यू आएगा, नंबर ऑफ रन स्कोर्ड आएगा, सो दैट विल बी मैच 1 में एवरेज प्लस, सिंस देयर आर 2 मैचेस प्लेड अप टिल मैच 2, तो प्लस 2 टाइम्स डेल्टा ए. सिमिलरली जब मैच 3 की बात करेंगे, तो मैच 3 तक 3 मैचेस हो चुके हैं, डेल्टा ए देखेंगे, मैच 2 का एवरेज और मैच 3 का एवरेज, डेल्टा ए चेंज इन एवरेज और फिर प्लस 3 टाइम्स डेल्टा ए करेंगे. क्या क्लियर है, ठीक है. यही चीज फॉर्मूले से भी देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैच 3 तक हम गए, तो मैच 3 तक हमारे पास 3 वैल्यूज होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 x2 x3 आर रन्स स्कोर्ड इन फर्स्ट 3 मैचेस एंड दिस डिवाइड बाय 3, दिस विल बी एवरेज इन मैच 3, ठीक है, दिस विल बी एवरेज इन मैच 3 व्हिच इज लेट अस से a2 प्लस डेल्टा ए मान लेते हैं कि हमें डेल्टा ए के लिए फंडा समझना है. और a2 क्या है हमारा, a2 इज बेसिकली x1
plus x2 by 2. So plus delta A. Multiply this whole equation by 6. ओके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ x1 plus x2 plus x3 and that is equal to 3 times of x1 plus x2 and plus 6 times delta A. ओके ठीक है तो 2 टाइम्स x1 plus x2 को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो बच जाएगा हमारा 2 टाइम्स x3 विल बी इक्वल टू x1 plus x2 plus 6 times delta A. Now divide by 2. So effectively result will be that x3 is equal to a2 x1 plus x2 by 2 which is a2 plus 3 times delta A. और यही तो हम कर रहे थे ठीक है कि टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ द सेकंड मैच प्लस 3 टाइम्स डेल्टा ए सेम कहानी फ्रॉम मैच 3 टू मैच 4 प्लस 4 टाइम्स डेल्टा ए ठीक है तो फ्रेश पेज पे लिखते हैं जहां पे हम सारा के सारा कैलकुलेशन करेंगे सो फ्रॉम मैच 1 टू मैच 2 विल बी डूइंग प्लस 2 टाइम्स डेल्टा ए फ्रॉम मैच 2 टू मैच 3 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा ए फ्रॉम मैच 3 टू मैच 4 प्लस 4 टाइम्स डेल्टा ए and from match 4 to match 5 plus 5 times delta A and delta A will be change in average. Okay, so match 1 mein score is 56 same as the value of average mentioned. For P3 this will be 25, for P4 it will be 44, for P5 10, for P6 64 and for P7 40. And for match 2 average value for P1 that is 48, so there is a change from 56 to 48, there is a change of -8. तो 56 हमारा एवरेज आया था मैच 1 का 56 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा ए तो 2 इंटू -8 विल बी -16 56 -16 यानी कि 40 रन्स विल बी स्कोर्ड इन मैच 2. नाउ मैच 4 के लिए तो हम स्कोर अभी नहीं पता लगा सकते बिकॉज हमें मैच 3 का डेटा चाहिए होगा बट फ्रॉम मैच 4 टू मैच 5 तो देयर इज अ चेंज ऑफ एवरेज कितना आ रहा है चेंज इन एवरेज दैट इज -4 आ रहा है ठीक है सो 40 प्लस स्कोर क्या होगा मैच 5 में दैट विल बी 40 प्लस 5 टाइम्स डेल्टा ए इज इक्वल -4 तो 40 प्लस 5 इंटू -4 यानी 40 -20 सो रन्स स्कोर्ड विल बी 20 इन मैच 5. अच्छा अप टिल मैच 5 टोटल रन्स स्कोर्ड by P1 in all the innings that will be 36 into 5 average into 5 180 runs scored by P2 32 into 5 160 runs scored by P3 अभी तो पता नहीं P4 140 P5 130 P6 220 and P7 150. ओके क्लियर है अब इंफॉर्मेशन देखना शुरू करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है P2 scored 16 runs more in match 2 than in match 1. P2 scored 16 runs more in match 2 than in match 1. So average of P2 in match 2 is 28 यानी कि runs scored up till match 2 यानी कि match 1 plus match 2 that is 56 28 into 56 और match 2 में 16 रन ज्यादा बनाए ठीक है सो क्या करेंगे 56 को डिवाइड बाय 2 करो 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड करो ठीक है 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड करो अब या तो लिख दो हम इक्वेशन लिखने की x मान लेते हैं मैच 1 के रन है तो मैच 2 के रन हो जाएंगे x plus 16 तो x plus 16 दिस इज इक्वल टू 56 तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा इक्वल टू 20 तो मैच 1 का रन आ जाएंगे 20 और मैच 2 के रन आ जाएंगे 36. एक मेथड ये हो गया दूसरा मेथड ये हो सकता है कि डिवाइड कर दो 28 को 2 पार्ट्स में और फिर एक पार्ट में 16 का हाफ 8 ऐड कर दो और एक में 8 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें दोनों के दोनों जो इनिंग्स के रन हो जाएंगे मिल जाएंगे यानी कि 20 एंड 36 मिल जाएगा 28 माइनस 8 20 28 प्लस 8 36 ठीक है 20 हमारा एवरेज भी आ जाएगा मैच 1 का एंड देन इट इज सेइंग हिज स्कोर वाज सेम एज मैच 2 एंड मैच 5 तो मैच 2 का स्कोर इज 36 तो मैच 5 का स्कोर विल आल्सो बी इक्वल टू 36. This will also be 36. As far as match 3 is concerned, average में चेंज क्या है 28 से हुआ है 34, 6 का इंक्रीज आया है तो प्लस 3 इंटू 6 प्लस 18 हो जाएगा तो 28 ध्यान में रखना है एवरेज में करना है कहानी जो भी करनी है तो 28 प्लस 18 सो दैट विल बी 46 हो जाएगा ठीक है 102 इज रन स्कोर्ड अप टिल मैच 3 फॉर P2 102 और मैच 5 में स्कोर किया है कितना 36 और टोटल स्कोर है 160 टोटल रन स्कोर है 160 तो 102 सब्ट्रैक्ट करो 160 में से तो 58 रन आर स्कोर इन मैच 4 प्लस मैच 5 में 36 है तो मैच 4 का हमारा रन हो जाएंगे 22 ओके अब एवरेज भी अगर हमें मेंशन करना हो तो एवरेज में कितना चेंज आ रहा है 34 से 22 पे क्या वैल्यू आ रहा है हमारा आ रहा है -12 और 4 टाइम्स डेल्टा इज इक्वल -12 यानी कि डेल्टा ए वैल्यू -3 34 -3 31 विल बी द वैल्यू तो P2 की कहानी तो कंप्लीट हो गई हमारी ठीक है नेक्स्ट वन द सम ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय P3 इन फर्स्ट 2 मैचेस वाज सेम एज रन्स स्कोर्ड बाय हिम इन द लास्ट मैच बट अभी हमें कोई भी आइडिया नहीं है फॉर P3 कि क्या रन्स स्कोर किए हैं सेकंड मैच में वी हैव नो आइडिया क्या रन स्कोर किए हैं थर्ड मैच में वी कैन नॉट फाइंड आउट बट फोर्थ मैच का फाइंड आउट कर पाएंगे बिकॉज चेंज आया है कितना थर्ड से फोर्थ में आया है 38 से 35 यानी कि -3 आया है तो 4 टाइम्स -3 यानी कि -12 38 -12 26 रन्स आर स्कोर्ड इन फोर्थ मैच बाय P3
दैट वी नो फॉर श्योर, बट बाकी हमें पता है कि P1 प्लस सॉरी दीज टू वैल्यूज का जो सम होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस वैल्यू। उसको बाद में लौट के आएंगे इस पे। इन मैच 3 P1 स्कोर्ड ऑल हिज रन्स थ्रू बाउंड्रीज हिटिंग एन इक्वल नंबर ऑफ फोर्स एंड सिक्सेस। So P1 scored all his runs through boundaries in match 3. Okay. And hitting an average number of, hitting an equal number of fours and sixes. So let us say P1 has hit n fours and n sixes. The number of runs क्या हो जाएंगे? 4 n runs will be from fours and 4 and 6 n runs will be from sixes. Total runs will be 10 n because सारे के सारे runs boundaries में ही score किए। तो total runs scored in third match by P1 will be a multiple of 10. तो या तो 10 होंगे या 20 होंगे या 30 होंगे 40 होंगे 50 होंगे एंड सो ऑन। बट हमें बाद की कंडीशंस गिवन है, मैच 3 का डेटा तो नहीं पता, बट मैच 4 एंड मैच 5 का डेटा पता है कि मैच 4 के बाद में हमारा एवरेज इज 40, एवरेज इज 40 यानी कि टोटल रन स्कोर्ड अप टू मैच 4 दैट इज 160, 160 while total runs scored up till match 2 that is 96. So 160 minus 96 this is equal to 64. 64 एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारा मेंशन था इन द इंट्रोडक्टरी पैसेज दैट इट इज नोन दैट द क्यूमुलेटिव एवरेज वैल्यू फॉर ईच बैट्समैन आफ्टर एवरी मैच वाज एन इंटीजर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सारे के सारे जो एवरेज वैल्यूज हैं जो नहीं भी मेंशन है वो भी ऑल दीज वैल्यूज आर इंटीजर। तो द एवरेज वैल्यू फॉर मैच 3 फॉर P1 दिस विल आल्सो बी इंटीजर। तो मैच 1 प्लस मैच 2 स्कोर आ रहा है 96, तो 96 प्लस 10n बिकॉज 10n रन्स स्कोर्ड इन थर्ड मैच दिस डिवाइडेड बाय 3 दिस विल बी इंटीजर। ठीक है, 96/3 तो पहले से इंटीजर है, तो 32 प्लस 10n/3 दिस विल बी इंटीजर और 32 खुद ही इंटीजर है, तो 10n/3 को भी इंटीजर होना पड़ेगा। दैट इंप्लाइज क्योंकि 10 तो 3 का मल्टीपल है नहीं, तो n को 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे पॉसिबल। तो n या तो इक्वल टू 3 होगा, ठीक है, या तो इक्वल टू 3 होगा और या फिर इक्वल टू 6 होगा, ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है क्योंकि 64 टोटल सम है हमारा फ्रॉम मैच 3 प्लस मैच 4। सो 3 और 6 के अलावा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो दो केसेस बनेंगे, या तो हमारा मैच 3 का स्कोर होगा 30 तो मैच 4 का स्कोर भी 34, या फिर मैच 3 का स्कोर होगा 60 और फिर मैच 4 का स्कोर हो जाएगा 4। तो दीज टू आर पॉसिबल केसेस। फिर क्वेश्चन साथ में ये भी कह रहा है P1's लोवेस्ट स्कोर केम इन मैच 4, लोवेस्ट स्कोर केम इन मैच 4। तो अगर पहला वाला कंडीशन लेते हैं 30 एंड 34, तो इन दैट केस लोवेस्ट स्कोर इज नॉट इन मैच 4। तो सेकंड वाला कंडीशन होगा फॉर श्योर कि 60 रन्स P1 मस्ट हैव स्कोर्ड इन मैच 3 एंड 4 रन्स मस्ट हैव स्कोर्ड इन मैच 4। तो 4 इन मैच 4 एंड 60 इन मैच 3 और एवरेज हो जाएगा मैच 3 का हमारा दैट विल बी 32 प्लस 60/3, 30 प्लस 20 यानी 52। ओके, सो P1 और P2 की कहानी तो होगी। अब आगे बढ़ते हैं फॉर P5 की इंफॉर्मेशन हमें दिया है, ठीक है, फॉर P5। सो P5 के लिए कह रहा है P5 स्कोर्ड मैक्सिमम रन्स इन हिज थर्ड इनिंग्स एंड हिज स्कोर वाज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 11। तो मैक्सिमम स्कोर फॉर P5 दैट इज इन हिज थर्ड इनिंग्स। तो 10 रन्स स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड में स्कोर क्या होगा, चेंज इन एवरेज है 12 का, तो 12 इंटू 24 ऐड करोगे 10 में, तो 10 प्लस 24 यानी कि 34 रन्स आर स्कोर्ड इन सेकंड इनिंग्स। सिमिलरली फोर्थ से फिफ्थ पे जाएंगे तो सेम एवरेज आ रहा है 26 एंड 26 यानी कि रन्स स्कोर्ड इन फिफ्थ इनिंग्स विल आल्सो बी सेम एज द एवरेज इन फोर्थ इनिंग्स बिकॉज तभी एवरेज हमारा कभी चेंज नहीं होगा, अदरवाइज तो चेंज होता। 26 हमारे फिफ्थ इनिंग्स का स्कोर आ जाएगा। और साथ में क्वेश्चन बता रहा है P5 स्कोर्ड मैक्सिमम रन्स इन थर्ड इनिंग्स। ओके, तो अप टिल फोर्थ इनिंग्स एवरेज क्या आ रहा है 26 यानी कि सम ऑफ रन्स आ जाएगा 26 into 4 which is 104। So 104 is sum of runs up till fourth innings and second innings का स्कोर था 44, तो 104 minus 44, so this is equal to 60। So runs scored in match 3 plus match 4 that is 60 और match 3 का जो runs scored है that is a multiple of 11। और अगेन सेम कहानी, मैच 3 का भी जो एवरेज होगा क्यूमुलेटिव एवरेज होगा हमारा दैट विल बी इंटीजर। सो रन स्कोर क्या आ जाएंगे 44 प्लस 11n/3। नाउ दिस हैज टू बी इंटीजर। तो क्या वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ, ठीक है, अगर हमने 11 पुट किया n इक्वल 1 पुट किया तो 55/3 नॉट मल्टीपल ऑफ 3, 2 पुट किया तो 22 आ जा रहा है, तो यस 22 इज अ पॉसिबल केस। और इसके बाद की जो वैल्यू लोगे 22 के बाद में अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आना चाहिए हमारा, अगेन जो जंप लोगे दैट जंप मस्ट आल्सो बी मल्टीपल ऑफ 3। जंप क्या होगा 11 का जंप होगा हमारा, अब 11 ऐड करोगे तब तो 3 का मल्टीपल मिलेगा नहीं, तो 33 ऐड करना पड़ेगा, या तो 22 वैल्यू होगा या फिर 55 होगा। इन केस ऑफ 22 रन्स स्कोर्ड इन फोर्थ मैच विल बी 38, इन केस ऑफ 55 रन्स स्कोर्ड इन फोर्थ मैच विल बी 5। So these two are possible cases। और अगेन हमारी कहानी कुछ कह रही है क्या यहाँ पे P5 स्कोर मैक्सिमम रन्स इन थर्ड इनिंग्स, मैक्सिमम इन थर्ड इनिंग्स यानी कि क्लियरली 55 वाला केस बनेगा, 55 एंड 5 वाला केस बनेगा। तो रन स्कोर इन third match will be 55 and in fourth match will be 5। So 44 plus 55 by 3 that will be 33। So average up till the third match will be 33 for P5, ठीक है।
P5 की कहानी भी कंप्लीट होगी, P4 का भी थोड़ा जो वैल्यूज बची हैं उनको कर लेते हैं। तो 44 से 34 हुआ है, चेंज इन एवरेज क्या है हमारा 10 का -10 हुआ है, तो +2 इंटू -10 यानी कि -20 होगा, 44 -20 यानी कि 24 रन विल बी स्कोर इन द सेकंड मैच। नाउ फ्रॉम सेकंड टू थर्ड 34 to 30 इज द चेंज इन एवरेज ऑफ -4, तो 34 -3 इंटू 4, सो 34 -12 यानी कि 22 रन आर स्कोर्ड इन द थर्ड मैच। इसके बाद की कहानी अभी पता नहीं लगा पाएंगे। ओके, सो P5 की भी कहानी कंप्लीट होगी। रन्स स्कोर्ड बाय P6 डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट नंबर आफ्टर ईच सक्सेसिव मैच, यानी कि कहानी क्या बन रही है यहाँ पे, एपी बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है। रन स्कोर्ड बाय P6 डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट नंबर आफ्टर ईच सक्सेसिव मैच, तो एक हमारा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, क्या फॉर्म हो रहा है, एक हमारा एपी फॉर्म हो रहा है, और एपी का सम आ रहा है 220। एवरेज मिल जाएगा यहाँ से, 5 वैल्यूज है टोटल, एवरेज हो जो होगा वो मिडिल वैल्यू हो जाएगा, 220 by 5 विच इज 44 ऑब्वियसली, एवरेज हमारा, तो 44 विल बी रन स्कोर्ड इन द थर्ड मैच। रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट मैच इज 64, थर्ड मैच में 44 है, तो इस एपी में क्या होगा, फर्स्ट मैच का अगर हम सम मान लेते हैं ए, थर्ड में आएगा a+2d, तो a+2d इज 44, तो 2d इज इक्वल -20, d इज इक्वल -10, 64, देन नेक्स्ट वैल्यू आएगा 54, फिर 44, देन 34 एंड देन फाइनली 24। ओके, और एवरेज हमारा क्या है, क्योंकि हमारा ये जो एपी बन रहा है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है -10 का, तो जो हमारा एवरेज का एपी बनेगा, इस एवरेज, क्योंकि एवरेज में भी एपी ही फॉर्म होगा, क्योंकि जब भी एपी में अगर एवरेज होगी क्यूमुलेटिव टर्म्स का, तो भी एक एपी फॉर्म करेगा, बट उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी जस्ट हाफ। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 64 से 59, देन 54, देन 49 एंड देन फाइनली 44, so completed for P6 also. Okay, now Rohit scored the highest runs in match one among all 7 batsmen. So among all 7 batsmen high score किसका है, high score है for P6, तो P6 must be Rohit, P6 is Rohit. Okay, then Virat was the sole highest total run scorer in the series. So for this series हमें स्कोर पता है, total sum of runs made by P1 is 180, P2 160, P4 140, P5 130, P6 220 and P7 150, बट सोल हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है, दैट इज विराट, और अभी तक जो हमारा हाईएस्ट रन स्कोरर मिल रहा है वो मिल रहा है रोहित को, बट क्वेश्चन कह रहा है कि विराट इज द हाईएस्ट रन स्कोरर, दैट इंप्लाइज कि एक ही वैल्यू में नहीं पता है, दैट इज फॉर P3, तो P3 मस्ट बी विराट, एंड टोटल रन्स मेड बाय P3 or Virat must be greater than 220 because he is the only one that has scored highest score. So the score, total score made by P3 will be greater than 220. up till fourth match एवरेज है 35 P3 का, लेकिन रन स्कोर्ड है 140, रन स्कोर्ड है 140, तो अगर 140 सब्ट्रैक्ट कर दे 220 में से तो बचेगा 80, यानी कि एटलीस्ट विराट मस्ट हैव मेड 80 रन इन द फिफ्थ इनिंग्स। ये बात भी क्लियर हो जाती है यहाँ से, और 80 से काम चलेगा नहीं, क्योंकि 220 से ज्यादा स्कोर किया है, तो 80 से ज्यादा रन स्कोर किए होंगे, यानी कि इन द फिफ्थ इनिंग्स रन स्कोर बाय विराट विल बी 80 प्लस। And if that is the case, so runs scored by Virat in the second innings, because first innings plus second innings का sum is equal to fifth innings, so second innings का sum क्या आना चाहिए, value must be 55 plus, तभी sum हमारा 80 plus आएगा। ओके, अब यहाँ पे कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने का क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है हमारे पास इन दिस सिनेरियो, क्या क्या वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल हो सकती हैं। तो अगर हम 25 के बाद 55 लेते हैं, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है क्यूमुलेटिव जो एवरेज की वैल्यूज है दैट वैल्यूज मस्ट बी इंटीजर फॉर ऑल द मैचेस। सो 25 प्लस 55 करेंगे तो हमें सेकंड मैच में वैल्यू इंटीजर मिल जाएगा, यानी कि सेकंड मैच में क्या क्या स्कोर हो सकता है, 55 होगा तो चलेगा, ठीक है, बिकॉज 55 25 फर्स्ट मैच का स्कोर है, 25 प्लस 55 इवन आ रहा है, इवन के केस में डिवाइड बाय 2 करोगे तो हमें इंटीजर मिल जाएगा। सेकंड वैल्यू कुड बी 57 और 59 और 61 एंड सो ऑन, तो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। और सिमिलरली फिर करस्पॉन्डिंगली हमारा स्कोर क्या आएगा लास्ट मैच में, 25 प्लस 55 आ गया 80, या फिर आएगा 82 एंड सो ऑन। बट ध्यान ये रखना है इन द एंड जो हमारा सारे मैचेस को मिलाने के बाद में हमारा जो स्टोरी है, जो टोटल रन स्कोर्ड होगा वो 220 से ज्यादा चाहिए हमको, 55 और 80 वाला केस तो काम नहीं करेगा ना, ठीक है। और अगर 82 रन स्कोर करेगा विराट, इन दैट केस टोटल सम आ जाएगा 222, ठीक है, 222, बट 222 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, और हमें 5 का मल्टीपल चाहिए होगा, क्योंकि तभी हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज होगा जो फिफ्थ मैच के बाद में वो एक इंटीजर आएगा, यानी कि 80 के बाद में नेक्स्ट वैल्यू हमारे काम का होगा 85। अब अगर हम सेकंड मैच पे फोकस कर रहे हैं तो वहां पे हमें ऑड वैल्यूज लेनी 55 57 59, यानी कि 2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है जो एपी फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है। और अगर लास्ट मैच पे फोकस कर रहे हैं, लास्ट मैच का जो रन है दैट मस्ट बी 80 और 85 और 90 और सो ऑन, यहाँ पे हमारा 5 का एपी में कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दोनों का ध्यान रखना है। तो 2 का जंप ले सकते हैं, 5 पे जंप ले सकते हैं, तो हमें कौन सा जंप लेना पड़ेगा, 2 और 5 का जो एलसीएम आएगा वहां पे ही हमें दोनों केस में कॉमनलिटी मिल जाएगा, यानी कि सेकंड मैच के बाद का जो एवरेज है वो भी इंटीजर आ जाएगा, और फिफ्थ मैच के बाद का एवरेज वो भी इंटीजर आ जाएगा, यानी कि 2 और 5 10 का जंप लोगे, 55 के बाद में नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी 65, और यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा हमें 90, हाँ 65 एंड 90, तो दिस कुड बी वन केस, या हो सकता है 75
एंड 100, या हो सकता है 85 एंड 110 एंड सो ऑन। ठीक है, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज। अब 85 से ऊपर नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ पे हमें थर्ड मैच के बाद ही फोकस करना है। थर्ड मैच के बाद जो एवरेज आ रहा है दैट इज 338, दैट इज 38, यानी कि सम ऑफ रन्स मेड अप टिल थर्ड मैच दैट इज इक्वल टू 114। सॉरी, टोटल है ये 114, नॉट मैच रन्स मेड इन थर्ड मैच। तो थर्ड मैच के बाद में टोटल सम आ रहा है 114। तो जैसे हम 25 प्लस 65 किया तो रन स्कोर आ रहा है 90। 25 प्लस 75 किया, रन स्कोर इन फर्स्ट टू मैचेस आ गए 100। 25 प्लस 85 किया, रन स्कोर इन फर्स्ट टू मैचेस आ गए 110। अब जैसे ही 25 प्लस अगर इसके बाद में जाओगे 95 पे जाओगे तो 95 के केस में रन स्कोर इन फर्स्ट टू मैचेस आ जाएंगे 120, जबकि फर्स्ट थ्री मैचेस का ही सम 114 आ रहा है। लेकिन इसके बाद का केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो तीन ही केसेस पॉसिबल होंगे, या तो रन स्कोर होंगे सेकंड मैच में 65 या 75 या फिर 85, एंड करेस्पॉन्डिंगली रन स्कोर इन फिफ्थ मैच विल बी 90 और 100 और 110। ठीक है, क्या है, क्लियर है? तो तीन केसेस अभी तक हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आगे की कहानी तो धीरे धीरे समझेंगे, बट अभी फिलहाल ये तीन केसेस नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। तो 65, 75 एंड 85, एंड करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज फॉर लास्ट इनिंग्स आर 90, 100 एंड 110। ओके, इसके बाद का स्टोरी, शुभमन स्कोर्ड मोर रन इन मैच 4 दैन इन मैच 2। तो कंपेयर करना है फॉर दीज प्लेयर्स, जिन प्लेयर्स के बारे में अभी हमें पता नहीं कि उनका नाम क्या है। तो फॉर दोज प्लेयर्स शुभमन स्कोर मोर रन इन मैच 4 दैन इन मैच 2। So match 2 versus match 4, तो P1 has not scored more runs in match 4, P2 has not scored more runs in match 4, P3 को तो देखना ही नहीं है, P4 के बारे में पता नहीं है अभी। ठीक है, P4 के बारे में पता नहीं पक्का। सो P4 कैन बी अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है, होल्ड पे रखते हैं। तो P5 अगेन हैज नॉट स्कोर्ड मोर रन इन मैच 4। P6 तो क्लियर है, रोहित है। P7, P7 के केस में लगातार हमारा एवरेज इंक्रीज कर रहा है, तो P7 के केस में पता लगा लेते हैं, और वैसे ही पता लगाने से पहले हमें पता है क्योंकि एवरेज लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो रन मेड इन मैच 4 मस्ट बी मोर देन मैच 2, शुड बी मोर देन मैच 2। ठीक है, ज्यादा होना चाहिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि अब डिपेंड करेगा वैल्यूज पे भी। तो 14 के बाद नेक्स्ट आ रहा है प्लस 6, तो 6 इंटू 2 प्लस 12 करोगे, 14 प्लस 12 26। फिर फॉर मैच 3, 3 इंटू चेंज इन एवरेज क्या है 4, 3 इंटू 4 12, तो 20 प्लस 12 32। ओके, फॉर मैच 4 चेंज इन एवरेज 4 का आ रहा है, 4 इंटू 4 16, 24 प्लस 16 आ रहा है 40। तो यस, मैच 4 का रन स्कोर आर मोर देन मैच 2। एंड फॉर मैच 5 क्या वैल्यू आएगा, चेंज इन एवरेज 2, तो 10 प्लस 28 38। ठीक है, तो इधर शुभमन इज P4 और P7। तो अभी क्लियरली तो नहीं कह सकते, बट शुभमन कैन बी इधर P4 और P7। ओके, हार्दिक्स बैटिंग एवरेज डिक्रीज्ड आफ्टर ईच सक्सेसिव मैच। सो फॉर विच प्लेयर एवरेज इज डिक्रीजिंग आफ्टर ईच सक्सेसिव मैच? फॉर P1 56, 48, 52, 40 एंड 36। तो पहले मैच 1 से मैच 2 में डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज कर गया, तो P1 तो नहीं है, हार्दिक फॉर श्योर। P2 20, 28, 34 इंक्रीज कर रहा है। P3 विराट है। P4 44, 34, 30 और फिर लास्ट में 28 आ रहा है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। और P5 10, 22, 33 इंक्रीज कर रहा है, और P7 इंक्रीज कर रहा है, तो क्लियरली P4 मस्ट बी हार्दिक, बिकॉज और किसी के लिए तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो P4 मस्ट बी हार्दिक। और P4 और P7 में ही हम कंफ्यूज थे फॉर शुभमन, तो शुभमन कैन नॉट बी P4, तो मस्ट बी P7। अच्छा, एक और बात, क्योंकि हार्दिक के लिए क्लियरली मेंशन्ड है कि हार्दिक्स बैटिंग एवरेज डिक्रीज्ड आफ्टर ईच सक्सेसिव मैच। ठीक है, सो फर्स्ट मैच का स्कोर है, एवरेज है 44, सेकंड मैच का 34, थर्ड मैच का 30 है, लास्ट मैच का 28 है। तो क्लियरली डिक्रीज करेगा, तो बिटवीन थर्ड मैच एंड फिफ्थ मैच, थर्ड मैच का एवरेज 30 है, फिफ्थ मैच का एवरेज 28 है, तो फोर्थ मैच का एवरेज विल बी लेस देन 30 बट मोर देन 28, एंड देयर इज ओनली वन वैल्यू पॉसिबल बिकॉज दैट आल्सो हैज टू बी इंटीजर, तो मैच मस्ट बी 29, मस्ट बी 29। और अगर 29 आ रहा है हमारा एवरेज फॉर फोर्थ मैच का स्कोर क्या होगा, चेंज इन एवरेज इज 1 -1, so 30 minus 4 that is 26. So for last match change in average is again 1, so 29 minus 5 that is equal 24. Okay, then in match 1 Shreyas scored twice as many runs as Rahul. So match 1 में we have to find out those two players जिनका की जो रन्स का है रेशियो वो 2:1 हो। So ऑलरेडी हम 4 को तो आइडेंटिफाई कर ही चुके हैं, तो 10 and 20, yes these are the values. So runs scored by Shreyas are double, so Shreyas must be P2 and Rahul must be P5। और अब एक ही प्लेयर रह गया, तो दैट मस्ट बी P1, और वो प्लेयर कौन सा है हमारा, रोहित, शुभमन, विराट, श्रेयस, राहुल, हार्दिक एंड रविंद्र। तो P1 मस्ट बी रविंद्र।
Okay, now last statement. India scored 265 runs while chasing in match 5 and won the series. So total score of India in match 5 that is 265 runs. That we also know. अब मैच 5 का हमें जो टोटल गिवन है, जो रन स्कोर्ड है इन प्लेयर्स के, उसका तो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो वहां पे हम सम फाइंड आउट करके शायद विराट के लिए जो हमें 3 केसेस मिले हैं उनमें से हमें कुछ केसेस को एलिमिनेट कर पाए. तो क्या सम बन रहा है मैच 5 के लिए? टोटल सम दैट इज 20 प्लस 36 56. और अभी विराट को छोड़ देते हैं. 56 प्लस 24 दैट इज 80. 80 प्लस 50 130. सो 168. तो 168 plus runs scored by Virat, let us say that is equal to V. So this has to be less than equal to 265 because total runs scored by India are 265. तो उसमें से कुछ रन होंगे जो बाकी प्लेयर्स ने बनाए होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली क्वेश्चन हमारा कह रहा था साफ साफ लास्ट लाइन में कि रन स्कोर्ड बाई these 7 बैट्समैन अकाउंटेड फॉर एटलीस्ट 90% रन. ये पूरा 100% रन नहीं है, दे आर एटलीस्ट 90%. तो इधर दे आर इक्वल टू 90% और मोर देन 90%. ठीक है, सो विराट का स्कोर शुड बी बेसिकली लेस देन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ 265 एंड 168 विच इज लेस देन 100. which is less than 100 आ रहा है 97. तो विराट कोहली स्कोर शुड बी लेस देन इक्वल टू 97. दैट यानी कि कैन नॉट बी 100, कैन नॉट बी 110. so the only possibility is that score of Virat must be equal to 90, must be equal to 90. तो यहाँ से हमें एक ही केस मिल गया. score of Virat must be 90 in the fifth innings and hence score of Virat in the second innings will be equal to 65. और 65 आ गया तो एवरेज आ जाएगा 45. और लास्ट मैच का एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल रन क्या आ गया हमारे? टोटल रन आ गए हमारा, ऐड किया हमने 140 प्लस 90 230, एवरेज इज 46. तो पूरा टेबल हमारा कंप्लीट हो गया. क्लियर है? अब क्वेश्चंस देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रन्स डिड विराट स्कोर इन मैच 5? तो विराट स्कोर्ड 90 रन्स इन मैच 5. सेकंड, हाउ मेनी रन्स डिड रविंद्र स्कोर इन द एंटायर सीरीज? तो रविंद्र इज P1, so runs scored by P1 is equal to 180. 180. Third one, what is the difference in runs scored by Hardik and Shubman in match 4? Hardik and Shubman in match 4. So Hardik has scored 26 runs in match 4 and Shubman has scored 40 runs in match 4. So difference is equal to 14 runs. The fourth match, what could be the maximum possible total score of Team India in any match of the entire series? Question कह रहा है any match, और maximum possible score क्या होगा? बिकॉज हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सिर्फ 7 बैट्समैन के लिए दिया, बाकी 4 बैट्समैन के लिए इन्फॉर्मेशन में मेंशन नहीं है, या फिर एक्स्ट्रास के होंगे इनका इन्फॉर्मेशन में मेंशन नहीं है, सो वो तो नहीं पता. बट हमें ये डेफिनेटली पता है कि इन 7 बैट्समैन ने इन 5 मैचेस में क्या क्या रन स्कोर किए. एडिशनली हमें यही पता है कि रन स्कोर्ड बाई दीज 7 बैट्समैन आर एटलीस्ट 90%. So with this information we can find out total runs scored maximum possible. ठीक है, सो मैच 1 मैच 2 का सम करके हम टोटल रन फाइंड आउट करते हैं इन 7 बैट्समैन के. तो मैच 1 का स्कोर क्या रहा है? 56 प्लस 20 76, देन 101 145 155 215 219 233 runs scored in match 1. Match 2 76 plus 5 81 141 165 169 199 253 and 279 रन स्कोर्ड इन मैच 2 बाय दीज 7 बैट्समैन. तो दैट इज हायर देन मैच 1. तो पॉसिबिलिटी अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर बताना है, एक्चुअल स्कोर तो हमें पता नहीं है. मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर मैच 1 और मैच 2 में से किस मैच के लिए ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जिस मैच में नंबर ऑफ रन स्कोर्ड ज्यादा होंगे बाय दीज 7 बैट्समैन, बिकॉज 90% हम मान सकते हैं, लेट्स से रन स्कोर्ड इन दैट मैच 90% रन स्कोर्ड आर बाई दीज 7 प्लेयर्स, और बाकी 10% बनाए होंगे बाकी प्लेयर्स ने, क्योंकि तभी तो हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे जब हम इन 7 प्लेयर्स के रन का जो परसेंटेज है उसको मिनिमाइज कर पाए. और मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज फॉर दीज 7 प्लेयर्स इज इक्वल टू 90% ऑब्वियसली एज पर द कंडीशन गिवन. तो 90% मान लेंगे जो रन स्कोर है बाई दीज 7 प्लेयर्स, और बाकी 10% की वैल्यू निकाल के हम फाइंड आउट कर पाएंगे मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर क्या होगा. और मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑलवेज इंटीजर होगा ऑब्वियसली. तो इंटीजर के अकॉर्डिंग जो हमारा वैल्यू मिलेगा वो हम आंसर फाइंड आउट करेंगे. थर्ड मैच का स्कोर देखते हैं. अच्छा 38, यहाँ पे वैल्यू मेंशन नहीं किया हमने. 90 एंड 24 रन आएंगे. 24, तो 60 प्लस 70 130 130 152 207 251, तो 283. तो ज्यादा पॉसिबिलिटी आ रहा है मैच 3 के लिए, बिकॉज मैच 3 का स्कोर आ गया 283. मैच 5 के लिए पहले से पता है कि टोटल रन आए 265. तो मैच 5 का तो क्लियर है, फिक्स्ड है हमारा जो रन स्कोर है दैट इज 265. मैच 4 4 प्लस 22, पहले वैल्यूज काफी कम है इस मैच 4 में. 26 52 78 83 87 117 157. तो मैच 4 में तो क्लियरली हाईएस्ट स्कोर पॉसिबल ही नहीं है. अच्छा मैच 3 में देखते हैं. सो पॉसिबिलिटी हमारे पास आ रहा है मैच 3 में हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर कैन बी इन मैच 3. तो मैच 3 के स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं. 283 हमारा रन स्कोर आ रहा है बाय दीज 7 प्लेयर्स. तो लेट अस से कि 283 आर इक्वल टू 90% रन्स स्कोर्ड बाय टीम इंडिया इन दैट पर्टिकुलर मैच. तो इन दैट केस टोटल रन्स क्या आ जाएंगे? टोटल विल बी
100% और बेसिकली 10/9 ऑफ 283, तो 10/9 इंटू 283, 2830 डिवाइड बाई 9 का इंटीग्रल पार्ट बेसिकली लेंगे हम, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट लेंगे, क्या वैल्यू आएगा, 9 3 27, 13 बच गया तो 31, देन 40, सो 9, एक सेकंड, 13 बचा, सो 40 बचा इसके बाद में, हाँ तो 9 4 जाए, 4 टाइम्स ही जाएगा, तो 304 14 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमारा आंसर जो होगा दैट विल 314। दिस विल बी नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाई टीम इंडिया, हाईएस्ट पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर दैट इज 314 एंड दैट कुड बी इन मैच 3। किसी और मैच का हम पॉसिबिलिटी देखेंगे तो फिर वहां पे तो डेफिनेटली हमारा स्कोर कम आएगा। ओके, तो बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5 को अटेम्प्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। फर्स्ट वन, इंडिया स्कोर्ड इट्स लोवेस्ट टोटल इन मैच 4 ऑफ द सीरीज। तो क्या हम डेफिनेटली पता लगा सकते हैं कि मैच 4 में ही लोवेस्ट टोटल होगा? देखो हमें एज सच स्कोर तो नहीं पता है, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन ये कहता कि इंडिया स्कोर्ड इट्स हाईएस्ट टोटल इन मैच 3, तो हम पक्का नहीं कह सकते थे, क्योंकि हमें 10% तो पता लगा लिया, बट हमें पता नहीं एक्चुअल में कि 10% है या उससे कम रन बचे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैच 3 में टोटल रन ही 283 हो और किसी प्लेयर ने रन ना बनाया, 0 बनाया, बिकॉज 90% कंडीशन तो तब भी सेटिस्फाई करेगा कि एटलीस्ट 90% रन स्कोर के इन प्लेयर्स ने 100% करेंगे तब भी तो करेगा। 285 और 286 हो तब भी काम करेगा। और अगर इवन इफ मान लो 290 रन हमारे मैच 3 में स्कोर हुए, ठीक है, अगर मैच 3 का स्कोर मान लो हमने कह दिया कि मैच 3 में स्कोर हुए 290 रन, अभी मैच 2 का स्कोर, क्योंकि 279 हमें ऑलरेडी सम दिख रहा है फॉर दीज 7 प्लेयर्स, 279 इज 90%, अगर 90% इसको एज्यूम करें तो दिस टोटल स्कोर विल बी ओवर शूटिंग 290, ठीक है, 300 पे पहुंच सकता है, क्योंकि 27.9 रफली हमारा 300 प्लस स्कोर पहुंच जाएगा यहाँ से भी, ठीक है, 398 के आसपास हमारा वैल्यू पहुंचेगा, बट क्लियरली दिस कैन ओवरशूट दिस वैल्यू। तो हम हाईएस्ट स्कोर के बारे में तो फॉर श्योर नहीं कह सकते हैं, बट क्या लोएस्ट स्कोर के बारे में ये लॉजिक दिया जा सकता है, कह सकते हैं या फिर नहीं कह सकते हैं, बिकॉज लोएस्ट स्कोर हमारा आ रहा है 157 और कोई भी दूसरा स्कोर आसपास नहीं है इसके, क्योंकि सेकंड लोएस्ट स्कोर हमारा क्या है, सेकंड लोएस्ट स्कोर आ रहा है इन मैच 1 दैट इज 233, और अगर 157 को 90% ही मानते हैं, इसको मैक्सिमाइज भी करने की कोशिश करें, तब भी हमारा जो स्कोर बनेगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 175, तो तब भी हमारा स्कोर 180 को भी टच नहीं करेगा। So clearly, in any other match, runs scored are much much larger. So clearly, we can say that yes, the statement given is true that India scored its lowest total in match 4. ये बात तो बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है फॉर श्योर बिकॉज ऑफ गिवन वैल्यू इन दिस टोटल इन दिस मैच, ठीक है। मैच जो 4 है हमारा, यहाँ पे जो टोटल हमारा वैल्यू आ रहा है 157, इसकी वजह से हम फॉर श्योर कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट तो पक्का ट्रू है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारे एक्चुअल रन क्या बने होंगे। हाँ, अगर स्टेटमेंट हाईएस्ट टोटल के बारे में बात करता तब हम पक्का नहीं कह पाते कि वो मैच वन में तो पक्का था, नहीं पहुंच पाता, बट मैच 2 या मैच 3 में से किसी एक में हाईएस्ट हो सकता था। अब वो कौन सा मैच होता ये पक्का नहीं कह पाते, ठीक है, क्योंकि मैच 5 का हमें स्कोर फिक्स्ड है 265, तो वहां से पॉसिबिलिटी अगर फिक्स्ड नहीं होता तब तो नहीं कह पाते, क्योंकि वहां पे भी हमारा मैक्सिमम स्कोर पहुंच सकता था, बट क्योंकि मैच 5 में हमें क्लियरली पता है कि इंडिया स्कोर 265 रन, तो 3 या फिर 4 में से सॉरी 2 या फिर 3 में से किसी एक में हाईएस्ट स्कोर होगा, ठीक है, क्योंकि और कहीं पे पॉसिबल नहीं हो सकता है, बट किसमें होगा ये फॉर श्योर नहीं कह सकते, बट लोएस्ट विल डेफिनेटली बी इन मैच 4। तो पहला स्टेटमेंट हुआ। सेकंड वन, 3 ऑफ द 7 बैट्समैन डिड नॉट स्कोर 50 और मोर रन्स इन एनी इनिंग्स ड्यूरिंग द एंटायर सीरीज। तो 3 ऑफ द 7 बैट्समैन, सो कंपेयर करते हैं, 50 रन आर स्कोर्ड बाय P1, तो P1 की तो कहानी बनती नहीं है। P2 हैज आल्सो स्कोर्ड, हैज नॉट स्कोर्ड, तो P2 इज वन ऑफ द प्लेयर्स। P3 तो विराट है भाई, उसने तो बहुत ही स्कोर किया है। P4 अगेन हार्दिक हैज नॉट स्कोर्ड 50 रन इन एनी इनिंग्स। राहुल हैज स्कोर्ड, रोहित हैज आल्सो स्कोर्ड 50 रन, तो शुभमन हैज नॉट स्कोर्ड 50 रन इन एनी इनिंग्स, तो यस, श्रेयस, हार्दिक एंड शुभमन, these three players, 3 out of 7 players have not scored 55 or more runs in innings, so this is also true. Both the given statements are true. Answer will be first and second both. Option C will be the answer. Okay, clear है? So last question of this session. If Rohit scored at most 40% of his runs in a match through boundaries and he hit more fours than sixes in the entire series, so what is the maximum possible number of sixes that Rohit could have hit? Maximum possible number of sixes that Rohit could have hit. और प्यारा सा सवाल है और क्वेश्चन ये कह रहा है रोहित स्कोर्ड एट मोस्ट 40% रन इन बाउंड्रीज, ठीक है, इन बाउंड्रीज तो फोर्स एंड सिक्सेस एट मोस्ट 40% रन। तो रोहित का स्कोर क्या है हर एक मैच में? सो मैच 1 का स्कोर है 64, 54, फिर तो एपी बन रहा है हमारा, ठीक है। सो फॉर रोहित 64 in match 1, 54 in match 2, 44 in match 3, 34 in match 4 and 24 in match 5. Now at most 40% runs are scored in boundaries. तो मैक्सिमम पॉसिबल रन स्कोर्ड इन बाउंड्रीज क्या हो सकते हैं? और देखो बाउंड्रीज में जो भी रन स्कोर होंगे तो या तो फोर्स पड़ेंगे, ठीक है, या तो 4 रन होंगे या फिर 6 रन होंगे, तो 4 और 6 यानी कि बेसिकली जो सम होगा, सम ऑफ रन इन बाउंड्रीज विल डेफिनेटली बी इवन, ठीक है। ऑब्वियसली 2 तो नहीं हो सकता,
2 रन्स अगर कहीं पे 40% आए तो फिर तो 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमम 4 तो बनेगा, ठीक है, बट 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, इवन 8 भी हो सकता है। 8 जब 2 फोर्स होंगे 10 हो सकता है, 4 + 6 हो जाएगा, 12 हो सकता है। तो एनी इवन वैल्यू दैट इज हायर देन 4 और इक्वल टू 4 विल बी गिविंग अस सम कंस्टेंट, सम सॉल्यूशन फॉर सम फोर्स एंड सम सिक्सेस, ठीक है। सो 64 में 40% निकालते हैं, क्या आएगा 40%, तो मल्टीप्लाई बाई 0.4 दैट विल 25.6। तो नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन बाउंड्रीज विल बी लेस देन इक्वल टू 25.6। 40% ऑफ 54 क्या आएगा 21.6। तो नंबर रन स्कोर्ड इन बाउंड्रीज विल बी लेस देन इक्वल टू 21.6, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या हमारे रन स्कोर्ड हो सकते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉसिबल, ये क्वेश्चन यही पूछा है, मैक्सिमम पॉसिबल हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल रन स्कोर्ड कैन बी 24, बिकॉज जो हमारा 40% का वैल्यू आएगा 25.6 है, या तो इक्वल होगा या फिर लेस देन, सो 24 इज द ओनली इवन वैल्यू दैट इज हाईएस्ट इन दैट सिनेरियो। 20 विल बी फॉर द सेकंड मैच, फॉर द थर्ड मैच इनटू 0.4 करोगे, दैट विल बी 17.6। लगातार देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी हमारा एपी ही बन रहा है, तो बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 16 आएगा, और फिर नेक्स्ट में 12 आएगा, और फिर नेक्स्ट में 8 आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हमारा 13.6, फिर आ जाएगा 9.6। तो 24, 20, 16, 12 एंड 8, ओके, दीज आर द रन स्कोर, मैक्सिमम पॉसिबल रन स्कोर बाय रोहित एंड बाउंड्रीज इन दीज 5 मैचेस, ओके। अब इनको ऐड कर लेते हैं, टोटल रन स्कोर इन बाउंड्रीज मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 24 + 20 44, 60 एंड 80। 80 रन कैन बी स्कोर्ड मैक्सिमम इन बाउंड्रीज बाय रोहित। और क्वेश्चन कह रहा है रोहित हैज हिट मोर फोर्स दैन सिक्सेस इन द एंटायर सीरीज, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सिक्सेस दैट रोहित कुड हैव हिट। अब एक तरीका यहाँ पे है कि टोटल रन हमने फाइंड आउट कर ही लिए, अब फोर्स मान लो ए नंबर ऑफ फोर्स हिट किए हैं रोहित ने एंड बी नंबर ऑफ सिक्सेस हिट किए हैं, तो रन स्कोर क्या आ जाएंगे 4A + 6B एंड दैट सम इज इक्वल टू 80। अब सॉल्यूशन निकालो यहाँ से, ठीक है, सॉल्यूशन निकालो, तो पहला सॉल्यूशन तो क्या मिलेगा 20 फोर्स एंड 0 सिक्सेस, दैट इज फर्स्ट सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा 20 और 0 के बाद, अब नेक्स्ट वाले क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ बी से चेंज करेगा हमारा नंबर ऑफ फोर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट वाले क्या आएगा 20 - 6 14, एक सेकंड यहाँ पे, ना नेक्स्ट वैल्यू ये नहीं आएगा, अभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4A + 6B आया 80, तो डिवाइड बाई 2 कर दो इसको, 2A + 3B, दिस विल बी 40, 40, ठीक है। अदरवाइज हम ये देखते हैं कि फोर्स और सिक्सेस कन्वर्ट कैसे होंगे, तो जब 3 फोर्स होंगे दैट कैन बी इक्विवेलेंट, नंबर रन्स विल बी इक्विवेलेंट टू 2 सिक्सेस, तो एलसीएम हमारा 4 6 का क्या है 12 है, तो 3 फोर्स कम करोगे और 2 सिक्सेस ऐड करोगे, या तो वैसे देख लो या फिर डिवाइड बाई 2 कर लो पहले, तो सिंप्लीफाई कर लो इसको इक्वेशन को। तो पहला सॉल्यूशन आएगा 20 0, नेक्स्ट आएगा 20 - 3 17 एंड देन 2, फिर आएगा 14 एंड 4, देन आएगा हमारा 11 एंड 6, देन फर्दर 8 एंड 8 एंड सो ऑन। अब एज पर द क्वेश्चन ही हिट मोर फोर्स देन सिक्सेस, दैट इज द कंडीशन, अगर इक्वल होता तब तो हमारा 8 एंड 8 वाला केस बन सकता था, क्योंकि मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ सिक्सेस को, बट इक्वल नहीं है, मोर फोर्स देन सिक्सेस, तो 8 8 वाला केस तो नहीं होगा, तो मैक्सिमम पॉसिबल सिक्सेस कैन बी इन दिस सिनेरियो व्हेन रोहित हैज हिट 11 फोर्स एंड 6 सिक्सेस, ठीक है। तो ये यहां से मैं आंसर 6 तो दिख रहा है, बट अगेन सिर्फ इतना काफी नहीं है, हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या ये एक एक्चुअल केस पॉसिबल हो गया हमारे गिवन कंडीशन, क्योंकि ऐसे भी कई केसेस हमारे बन सकते हैं कि जहां पे कि हमारे ये केस पॉसिबल ना हो, तो इंडिविजुअली हर एक मैच का जो स्कोर है वहां पे पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लास्ट मैच में हमारा रन आ रहे हैं 8, तो यहाँ पे कितने फोर्स और कितने सिक्सेस हो सकते हैं, फोर्स एंड सिक्सेस, 0 फोर्स ऑब्वियसली एंड 2 0 सिक्सेस ऑब्वियसली एंड 2 फोर्स, दैट इज ओनली पॉसिबल केस। अच्छा 12 वाले में क्या कहानी बन सकता है, फोर्स कैन बी इधर 3 फोर्स एंड 0 सिक्सेस, ये पहला सिनेरियो है, या फिर 2 सिक्सेस एंड 0 फोर्स, तो ये दो केसेस बनेंगे। 16 वाले केस में क्या बनेगा, फोर्स हो सकते हैं सारे के सारे फोर्स हो और सिक्सेस 0 हो, या फिर 1 4 एंड 2 सिक्सेस, two possible cases. In case of 20, fours can be 5 and in that case sixes will be equal to 0, और या फिर नेक्स्ट होगा 2 fours and 2 sixes, and for 24 we can have 6 fours and then coincidentally यहाँ पे वैल्यूज हमारी ऐसी हैं कि सारे के सारे केसेस में हमें इजीली सॉल्यूशन मिल रहा है, अदरवाइज, और इसलिए शायद जो आंसर आएगा वो भी 6 आ जाएगा, बट अदरवाइज किसी और केस में कंस्ट्रेंट को हमेशा ध्यान रखना है कि हर एक मैच का इंडिविजुअल केसेस पे हमें देखने पड़ेंगे कि क्या इंडिविजुअल केसेस को जो मैक्सिमम वैल्यू हमारा 6 सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे इस इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू 7 आया था, तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हर एक मैच में हमारा जो वैल्यू आ रहा है सिक्सेस का,
क्योंकि 4 को 6s में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा अल्टीमेटली, वहाँ पे हमें कितने 6s मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि सारे के सारे केसेस हमारा मल्टीपल ऑफ 4 तो आ ही रहा है। सारी जो हमारे रन्स है 8, 12, 16, 20, 24 ये सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 4 है। कुछ वैल्यूज हमारी 6 सारी मल्टीपल है, बट 4 का तो सारे ही सारे मल्टीपल है, ठीक है। सो क्लियरली हमें यहाँ पे एक केस तो ऐसा मिल रहा है जहाँ पे कि सारे के सारे 4s हो और 6s 0 हो। तो यहाँ पे हमें 6s का जो पॉसिबिलिटी मिलेगा वहाँ पे 6s हमेशा इवन होंगे, तो या तो 0 होंगे या 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो 6s हमारे 4s हमारे 6 हो जाए 24 वाले केस में, 6s 0 हो जाए, या फिर 4s हो जाए हमारे 3, 6s 2 हो जाए, या फिर 4s हो जाए 0 और 6s 4 हो जाए। तो क्लियरली हमें जो टोटल सम ऑफ केसेस मिलेगा सारे के सारे केसेस को देखोगे तो हमें मैक्सिमम 6 6s मिल सकता है। तो अगर 7 वाला सॉल्यूशन जैसे केस आ रहा होता है यहाँ पे तो वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, पॉसिबल नहीं होता, बट 6 तो क्लियरली पॉसिबल है और मल्टीपल तरह से पॉसिबल हो सकता है, तो हमें देखना नहीं है, बस ये समझ में आ रहा है 6 वाला केस हमारा पॉसिबल हो जाएगा फॉर श्योर। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 6, दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ 6s दैट Rohit could have hit under the condition that more 4s than 6s will be equal to 6. ओके, अगर ये कंडीशन गिवन है तो तब मैक्सिमम क्या आता है हमारा, उस केस में हम देखते हैं मैक्सिमम कितना आएगा, 2a + 3b = 40। तो 8 के बाद में नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा हमारा 5, 10 और फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगा हमारा 2, 12। तो मैक्सिमम 6s will be equal to 12 in that scenario. But as per the question, 6 will be the answer for this particular question. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है। सो दिस वाज अ सेट। आई बिलीव कि मजा आएगा इस सेट को करने में और काफी सारी चीजें इस सेट से सीखी होंगी, क्योंकि इस सेट में एक तो क्युमुलेटिव एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है जिसको हमने अच्छे से किया, ताकि वैसा कभी भी तुम्हें आगे कॉन्सेप्ट समझ में आए, कहीं कहीं भी क्वेश्चन मिले तुम इजीली उसको हैंडल कर सको, और कैसे हैंडल करना है ये भी हमने सीख लिया, क्योंकि इसी के लिए सारे के सारे पूरे सेट में जो भी डेटा था वहाँ पे कई सारी वैल्यूज मिसिंग भी थी और भी काफी चीजें हमने सीखी इस सेट में। तो आई बिलीव कि सारी सारी चीजें समझ में आएंगी। तो फिर भी कहीं डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मैसेज, सेशन कैसा लगा बताना, और क्या इस पर्टिकुलर केसेट को तुम अपने हैंडल करता है, कितना टाइम लगा तुम्हें इस केसेट को सॉल्व करने, क्योंकि केसेट टाइम टेकिंग तो था, टाइम तो लगा होगा फॉर श्योर, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। गिव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लेना, सेशन को लाइक नहीं किया तो भी कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप